Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we're going to learn about classification of services. Before going to start this topic, I just want to tell you that we have already discussed in our previous video about the meaning, definition of the services, and as well as one more question we did in the last lecture, and the question was features and characteristics of services. If you want to watch that videos too, so definitely I am going to share the link in the description box so you can watch from there. So friends, start with our today's topic, that is classification of services. What is services? So we have already discussed that services are, or service is an act of performance which is offered by one party to another party. Okay, so now it's time to learn about the classification. Total we have 6 classification of the services here. Okay, so total 5 we have, as you can see on the screen. End users, people based services, profit orientation, degree of tangibility, and यहाँ पर है expertise required. Okay, so start with our first point, that is end users. So I can say services are provided in different segments, but the reason to purchase, quantity, complexity of services differs in all the segment. We can say the services can be classified different types according to the end users, because we have lot of segments and we have different segments in our society. According to the different segmentations, we have some classification of the services on the basis of end users here. So end users में again we have 3 type: individual consumer, business to business, and industrial end user. So here I am going to share some examples which is very important. So examples के accordingly it will become very easy to understand these concepts here. Very first we have individual consumer. यहाँ पर हम end users के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला point आता है individual consumer. Like example, as an individual, if I am going beauty salon to the hairdressing up, or if I am booking any packaging holidays for the enjoyment for my personal, so यहाँ पर हॉलीडे पैकेज को बुक करना या फिर हेयर ड्रेसिंग कराना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए ब्यूटी पार्लर वगैरह विजिट करना इज़ नथिंग बट द इंडिविजुअल कंज्यूमर सर्विसेज. यानी कि यहाँ पर एज एन इंडिविजुअल आई हैव टू विजिट टू द ब्यूटी सैलून एंड पार्लर और एनी टूरिस्ट प्लेस. सो वहाँ पर क्या होगा, एज अ पर्सनल लेवल पे आपको और एज अ इंडिविजुअल लेवल पे आपको सर्विसेज दी जाएगी. सो यहाँ पर कोई चीज़ आपको बेची नहीं जा रही है, बल्कि यहाँ पर आपको सर्विस दी जा रही है एज अ इंडिविजुअल कस्टमर होने के अकॉर्डिंगली. सो एंड यूजर्स इज नथिंग बट द फाइनल कंज्यूमर. सो इंडिविजुअल कंज्यूमर अगर पर्सनल यूज़ के लिए या पर्सनल के लिए कुछ भी सर्विसेज को एंजॉय कर रहा है, जैसे कि मैंने हेयर ड्रेसिंग और हॉलीडे पैकेज का एग्जाम्पल दिया, सो ये आता है इंडिविजुअल कंज्यूमर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूजर्स. देन वी हैव बिजनेस टू बिजनेस. अब यह बहुत सारे बिजनेस को रिक्वायरमेंट होता है उनकी डील्स को या उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी और बिजनेस का. एग्जाम्पल, जैसे कोई एडवर्टीजमेंट एजेंसी है जो एड कैंपेन बनाती है, तो वहाँ पर अगर उन्हें प्रिंटिंग करना है या बैनर्स बनाना है, तो उसके लिए वो दूसरे कंपनी या दूसरे बिजनेस को हायर करेंगे या उनको ये काम देंगे. मतलब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की सर्विस एंजॉय करेगा या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को यहाँ पर सर्विस देगा. सो अगेन इट इज़ अ एंड यूजर्स वाला कंसेप्ट, बट यहाँ पर डिवाइडेशन है. पहला हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर का देखा, दूसरा हमने ये देखा कि जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के लिए काम करता है या उसको सर्विसेज देता है. उसके बाद थर्ड वी हैव इंडस्ट्रियल एंड यूजर्स. अब जैसे कि समझिए कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर कोई चीज़ का सेटअप करना है, ठीक है. सो बड़ी सी इंडस्ट्रीज़ में आपको पता है बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, मशीनरीज होती है. उसके सेटअप करवाने के लिए या उसको मंथली या ईयरली बेसिस पे उसका जो वैल्यू डेप्रिशिएट होता है, उसके लिए रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए जो लोग आते हैं वो हमको सर्विस देते हैं. मतलब सर्विसमैन को हमने हायर करना होता है, वो आके आपको सर्विसेज देंगे एंड यू हैव टू पे फॉर द सर्विसेज. ठीक है. सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एंड यूजर्स के लिए भी सर्विसेज होती है. मतलब सर्विसेज अगर एंड यूज़र फाइनल कस्टमर की हम देखें, सो वो इंडिविजुअल हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है या इंडस्ट्रीज़ के लिए हो सकता है. ओके. सो सेकेंड पॉइंट वी हैव डिग्री ऑफ टेंजिबिलिटी.
what is the meaning of tangible? Tangible is nothing but which we can touch or which we can see, is nothing but the tangible. And intangible is the opposite of the tangible. And intangible meaning is which we can't touch, which we can't see, but only feel it, but only we can take an experience from it, like a service. ठीक है. सो सर्विसेज में भी डिग्री होती है, टेंजिबिलिटी की, इनटेंजिबिलिटी की. सो पहला हाईली टेंजिबल, दूसरा हाईली इनटेंजिबल. और कुछ गुड्स कैसे होते हैं, हाईली टेंजिबल होते हैं. इट मीन्स विच वी कैन टच. जैसे कि अगर आपने रेंट पे कोई कार ली है, सो रेंट पे लिया है मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया है और रेंट कंपनी ने आपको वो सर्विस दी है कि आप उसे एंजॉय कर लो थोड़ी देर के लिए. आप हायर किया आपने कार रेंट कंपनी से, कार कंपनी से. सो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओनरशिप आपके पास है, आप उस कार को यूज़ कर रहे हैं. मतलब कार इज़ अ टेंजिबल प्रोडक्ट विच वी कैन टच और सी, बट स्टिल यू आर एंजॉइंग द सर्विसेज. ठीक है. देन वन मोर पॉइंट वी हैव, दैट इज सर्विसेज लिंक टू द टेंजिबल गुड्स. इन द मीनिंग पार्ट एंड द डेफिनेशन पार्ट अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्विसेज मे और मे नॉट बी टाई अप विद द टेंजिबल प्रोडक्ट और द फिजिकल प्रोडक्ट. मतलब कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो फिजिकल प्रोडक्ट से जुड़ी होती है, कुछ ऐसी होती है जो फिजिकल प्रोडक्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है. सो जैसे मैंने आपको बताया कार फिजिकल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सर्विस है, वैसे हम होटल का एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर आप होटल में जा रहे हो टू कंज्यूम और टू हैव सम फूड, सो फूड जो आप कंज्यूम करोगे वो टेंजिबल प्रोडक्ट हो जाएगा. लेकिन होटल में सॉरी जो वेटर आपको सर्विसेज देगा उसका बिहेवियर, उसका सर्व करने का पैटर्न विल बी कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल सर्विसेज. ठीक है. सो हाईली इंटेंजिबल मतलब जहाँ पर लाइक अ टीचर, इफ आई एम अ टीचिंग, इफ आई एम अ टीचर, इफ आई एम टीचिंग टू यू इज नथिंग बट आई एम प्रोवाइडिंग services to you and my services is highly intangible. It means मेरी services को you can't touch or you can't see, but you can enjoy, you can take experience from it or you can feel it. Okay. Then we have next one, people based services. Here we have some services like which is based on people and some services we have which is based on equipments. ठीक है. पीपल बेस्ड सर्विसेज हाईली कनेक्ट करती है लोगों से या सर्विस प्रोवाइडर से, और जो एक लो कॉन्टैक्ट वाली सर्विसेज है इसे हम कहते हैं इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज. ऑल्सो इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज कहते हैं. ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है आपको ये चीज़. हाई कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ जैसे कि डॉक्टर्स के पास आप जा रहे हो, डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, मतलब यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर दोनों अवेलेबल है. लॉयर के पास जा रहे हो किसी केस को लेके, लॉयर आपको सर्विस देगा बट लॉयर और क्लाइंट दोनों अवेलेबल है. ठीक है. सो टीचर भी, टीचर्स वाले में भी आप देखोगे ईदर टीचर हैज़ टू गो टू द स्टूडेंट और द टीचर, स्टूडेंट हैज़ टू गो टू द टीचर. मतलब सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर का होना इज़ वेरी मस्ट. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाईली कॉन्टैक्ट हो रहा है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस एंजॉय करने वाला दोनों के बीच में कनेक्ट है. ठीक है. सो इसको हम कहते हैं पीपल बाय बेस्ड सर्विसेज बट हाई कॉन्टैक्ट में. व्हाट अबाउट लो कॉन्टैक्ट एंड इक्विपमेंट बेस्ड सर्विसेज लाइक एटीएम मशीन. आप जाते हो कैश विड्रॉ करने के लिए, यहाँ पर आपको कोई चीज़ बेची नहीं जा रही है बट एटीएम मशीन द्वारा आपको सर्विसेज दे रही है बैंक, जहाँ पर आप अपने कैश को एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो. इज़ नथिंग बट इक्विपमेंट बेस्ड. और लो कॉन्टैक्ट मतलब यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं बट स्टिल दे आर एंजॉइंग services and they are still providing services to us via ATM machine for the cash withdrawal. कूपन सर्विसेज होती है. बचपन में आप जेम्स वगैरह की गोलियां खाते होंगे, कॉइन डालते होंगे, जेम्स आता होगा. हाईली कॉर्पोरेट रेपुटेटेड इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस में भी आप लेज है, कुरकुरे है आपके ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर कैन जो टिन वाले मटेरियल्स होते हैं उनके लिए आपको कार्ड स्वाइप करना है या कॉइन एंटर करना है, डालना है उसके अंदर, सो आपको वो चीज़ मिलेगी. ठीक है. देन वी हैव नेक्स्ट दैट इज एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड. कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिसके लिए हाईली प्रोफेशनलिज्म का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ ऐसी होती है जिसके लिए प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड नहीं होता है. जैसे डॉक्टर्स एंड सीए देख लो, हाईली प्रोफेशनल मतलब वेल एजुकेटेड पीपल रिक्वायर्ड होते हैं. ऐसे सर्विसेज को हम कहते हैं सर्विसेज लिंक्ड विद द हाईली प्रोफेशनल. नॉन प्रोफेशनल लाइक कॉबलर, आपको पता है जो शू रिपेयर करता है. दूसरा बेबी केयर वाले जो होते हैं, ये लोग पढ़े लिखे ना हो बट स्टिल दे कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू अस, सो इसे हम कहते हैं नॉन प्रोफेशनलिज्म. देन वी हैव प्रॉफिट ओरिएंटेशन.
कुछ सर्विसेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए लोगों को दी जाती हैं, कुछ सर्विसेज लोगों के वेलफेयर के लिए दी जाती है, जैसे नॉन प्रॉफिट और कमर्शियल। नॉन प्रॉफिट में चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओ, एनपीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आता है, जहाँ पर इनका मोटिव ये नहीं होता कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है, बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पीपल और द सोसाइटी। नेक्स्ट इज कमर्शियल, मतलब कोई भी बिजनेस यूनिट, सर्विस यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग। सो यहाँ पर इनका मोटिव ये होता है, प्राइमरी मोटिव होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बट एज अगेंस्ट टू द सर्विसेज दे नीड मनी. They are not doing work and they are not doing providing services as a free of cost. They are charging as against their services. So it is a commercial thing. So friends, we have completed the classification here, classification of services here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care. Keep watching, keep supporting. Do like and subscribe to my YouTube channel.